We are at another hostel where there are lots of students you're seeing and girls on them, and they've all come from far. Acha, where have you come from? From Mangalore, Karnataka. Bangalore, Kannada. Why did you choose Kota? It's considered the best place to, like, where students generally come. So yeah, parents asked us to come and I did. So what are you preparing for? Neat. Neat. आप बिहार से आए हो, जैसे क्या बता रहे हो? कोटा क्यों चूज किया? बहुत दूर है. बिकॉज यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, मैंने सुना है इसीलिए, और बिहार में इतना एजुकेशन का भी इतना नहीं हुआ है इसीलिए. Okay, you know, we do hear a lot about Kota. Please come. We do hear a lot. Where are you from? आप कहाँ से हो? I am from Bihar. Bihar from where? Motipur. Okay. So why did you choose Kota to come? It's very far, right? Yeah, it's very far, but study is very sufficient and very good. So my parents told me to go Kota. So you people are not under any pressure from your students that you have to win, you have to clear as soon as possible? Or is there kind of parental pressure, family pressure, and also from your peer group? I'm lucky that I don't have parental pressure, but yeah, of course, like there are a lot of peer pressure around you. Like there are thousands and lakhs of students sitting with you. There's always that, but if you take it in a good sense, it's better. Like it's not considered as like in Kota only bad pressure is there. Yeah. A little bit of So pressure. it's a little unfair when people say that about Kota. It's a little unfair. It's not like totally that it's there is no pressure. Of course, there is a pressure, but we are taking a field where we have to deal under a lot of pressure. Yeah, so जब कंपटीशन है तो प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, बट आपके ऊपर कोई पेरेंट्स का दबाव या फैमिली या सोसाइटी यू डोंट फील दैट. Do you think it's very unfair? Because I also hear about cases of, say, for example, children committing suicide and all of that. तो जब आप ये देखते हो, ये सुनते हो, do you feel bad about it? Is it something you want to tell those kind of students that maybe you shouldn't do this? यस ऑफ कोर्स, मतलब ये तो बहुत गलत बात है ना. अगर आप किसी प्रेशर में हैं तो आप अपने टीचर से या जिससे आप कंफर्टेबल है कि हमें उन्हें बताना चाहिए, उन्हें ऑफ कोर्स बताना चाहिए हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सके. सुसाइड करना प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है मैम. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसे शेयर करें जिससे आप चाहते हैं, ताकि थोड़ा प्रेशर इससे कम होता है. Absolutely agree with you. Sharing is the key. तो आपके ऊपर कोई दबाव आता है? बिहार में तो बहुत दबाव पड़ता है ना, सब जगह दबाव, एक्चुअली सब जगह पड़ता है. नहीं, कोई दबाव नहीं पड़ता है. You were talking about, when I was talking about cases like suicide and so on and so forth, it gives Kota a very bad name. But many people also blame, say, politicians, the coaching institutes, you know. You think that's true to say that? At some extent, yes, but not truly. But like, there's always this. If I go into deeper things, like in India, education loan is much bigger than the loans that you take for houses. So if they reduce some kind of like increasing seats for be it medical or engineering, that would help us. And committing suicide is of course not the right option. It's not the right option at all. And these are the facts that in Kota only 3% of the entire student go to a mental counselor, which is not right. Like there should be there should be more counselors for this kind of stuff. Do you have people around you, your friends or people you know in your coaching institute, who you see are under pressure, and do you try to counsel them yourself and explain to them? Of course, like yes, I have a lot of friends, those who seem depressed all the time. I try to make like have a little bit fun with them, but then those people, you can't help them much if they don't want to share those things personally with you. Sharing is the key. Right. यस मैम, श्योर. Sharing is the key. आप भी मानते हैं ये बात? Sharing is the key. I have also many friends who is depressed and So you try to explain to them? yeah, कि suicide it's not the. So you are not under any pressure. You people don't have your moments of worry and depression. We of course have them. You have depression, yeah. at Not times. depression. I Or would worry, say. yeah. Sometimes at some low points are there, of course, like if you don't get good marks, like you're more worried about your future than the present time, or be it past. Like I couldn't do better the last time. I don't know if I'll be able to do better the next time. So there's this kind of a pressure, but a little bit is always required. The Kota strongman and one of the closest aides of the Chief Minister, Mr. Shanti Dhaliwal, myself. Thank you very much हमसे बात करने के लिए. आपको कहा जाता है कि आप यहाँ के बहुत ही strongman हो कोटा से. तो आपको उम्मीद है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी को आप लोग फाइट करके जीत पाएंगे? मैंने एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, फाइट करने का तो सवाल ही कम होता है.
सरकार ने तो सारे काम जितना जनता चाहती थी ना उससे भी ज़्यादा काम करके दिखा दिया। तो कोई इनकम्बेंसी यहाँ पर इसकी पूरे पूरे राजस्थान में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आपको। कोटा जो की मांगा लोगों ने वो सब दिया है। कोटा की जब भी हम लोग बात करते हैं, लोग बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स के, स्टूडेंट्स के सुसाइड्स की, पेपर लीक की बात जो प्रधानमंत्री ने खुद कर कहा था। आपने बहुत सारा कदम उठाया। क्या आपको लगता है ये चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बीजेपी इसको बना रही है? सवाल ही नहीं होता है भाई। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमेशा से इस तरीके की हरकतें होती रही हैं। क्या समझे आप? क्योंकि आखिर आदमी जो है वो लड़का अगर मान ली ये का जब देखता है कि मैं कंपटीशन में पास नहीं हो सकता, तो कई बार उसके मन में इस प्रकार की भावना आती है। तो उसको रोकने के लिए भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं, कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं जिससे कि जो सोसाइटी के जो केसेस हैं वो कम से कम जैसे हो। कुछ पार्क्स आपने शायद बनाए ताकि लोग वहाँ, कुछ पार्क भी आपने बनाए हैं ताकि बिल्कुल बाकायदा गाइडलाइन बनाई है। उस गाइडलाइन के अनुसार जो है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को चलना पड़ेगा, उनको रेस्ट देना पड़ेगा। ये सब कई पेपर लीक वाला मामला सर, पेपर लीक वाला मामला। पेपर लीक देखिए राजस्थान में थोड़ी हुए हैं, कहाँ नहीं हुए? कौन सी स्टेट में नहीं हुए? क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुए? क्या गुजरात में नहीं हुए? लेकिन ये जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन सब के मुलजिमों को सबको गिरफ्तार किया गया। 200 से ज़्यादा आदमी मुलजिम गिरफ्तार हैं आज। क्या समझ? तो पेपर लीक का निश्चित तौर पर ये हर जगह होता है। राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा आपको लगता है? आर्मी में हो गया भाई पेपर लीक। बताइए आप, तो आपको नहीं लगता ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? बनाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या पेपर लीक नहीं हुए हैं? और जहाँ उनके राज हैं आज, चाहे मध्य प्रदेश है चाहे गुजरात है, क्या वहाँ पेपर लीक नहीं हुए? तो पेपर लीक से जीतना चाहते कोरा सिर्फ इस मुद्दे को बना करके जीतना चाहते हैं कि करा क्या इन्होंने? जो योजनाएं मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने दी है जनता के लिए, जिनसे कि सीधा सीधा लाभ मिल रहा है, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को परिवारों को जो है वो सीधा का सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। उन योजनाओं को क्या उसका असर नहीं पड़ेगा लोगों पे? और एक और मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है वो महिला सुरक्षा के होता है, महिला सुरक्षा वाला मुद्दा। उनका कहना है कि यहाँ पे बलात्कार या रेप बहुत होते हैं और सरकार कुछ भी नहीं। जो ऐसा है ये इसका ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारा इंतजाम किए गए हैं और इंतजाम है भी सही। क्या समझे? और लोग महिला अपने आप को सुरक्षित मानती भी है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दुष्कर्म के काम होते हैं। मना नहीं करता, काम नहीं होते, लेकिन किसी के नहीं होते हैं। कौन सी स्टेट है ऐसी जिसमें नहीं होते? लेकिन उनको वक्त पे पकड़ करके सज़ा दिलवाई जाती है। फांसी की सज़ा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है, सब कुछ हुआ है। पॉक्सो की जो अदालतें हैं वो फटाफट काम करती हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री की और सचिन पायलट की। और मुझे याद है आपने सचिन पायलट के बारे में भी कहा था, लेकिन जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात भी कहा गया था इस बार शायद आपको टिकट इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आप तीनों जो नेता थे वो आप लोग CLP की बैठक में नहीं गए थे। देखिए वो तो मुद्दा ख़त्म हो चुका है। मैंने उसके लिए सॉरी फील कर ली, बात ही ख़त्म हो गई। उस मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बार अगर कांग्रेस जीतती है, आप चाहते हो कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने? मैं ये नहीं कह सकता, हाईकमान जिसकी मर्जी होगी वो बनाएगा। हाईकमान और फिर विधायकों की राय ली जाती है हाईकमान के द्वारा। गहलोत जी के काफ़ी करीबी हैं आप। हाँ, शुरू से कभी करीबी रहा हूँ उनका। तो उन्होंने आपके लिए पुश किया होगा टिकट देने के लिए? मैं ये नहीं कह सकता क्या नहीं किया है। आखिर में अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं अगर आपकी सरकार आती है तो आप उनके साथ काम कर पाओगे? मुझे तो जो काम देंगे करेंगे। नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट के साथ आप निभा पाओगे? भाई जो भी सर हाईकमान का आदेश होगा उस आदेश को मानेंगे। मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी और कल उन्होंने कहा था कि ये बेकार की लड़ाई थी, कांग्रेस का वक्त भी ज़ाहिर हुआ, पायलट खिलाफ गहलोत नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसका नुकसान कांग्रेस को मिलता है और दूसरी बात ये मुद्दा बीजेपी को मिल जाता है। आपको लगता है हाइंडसाइड पे कि शायद ये गहलोत बीजेपी में गुटबाजी नहीं है क्या बीजेपी में लड़ाइयाँ नहीं है आपस में? बताइए आप। हर पार्टी में होता है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो जिताने का सचिन पायलट भी काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। आखिर में बेकार में आपको लगता है ये झगड़ा जो हुआ सो हुआ, नहीं होना चाहिए था? झगड़े होते रहते हैं और सुलझते रहते हैं, ये सब बातें हो गई,
और झगड़ा हो और फिर सुलझ जाए, वो ज़्यादा बढ़िया स्थिति होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए।